Good morning, class 2 students. How are you? Now, this time I don't want to hope. I expect that yes, all of you are going through reading of the book Precious Values. आप सभी लोग Precious Values की बुक पढ़ रहे होंगे. Now, on the screen you will see one thought is there. That is, success is wheel which moves on wheel called hard work. But the journey is impossible without fuel called self-confidence. सक्सेस एक तरीके का पहिया होता है और इस पहिए को बोलते हैं हार्ड वर्क. सक्सेस बेसिकली क्या होता है? कड़ी मेहनत करना इज कॉल्ड सक्सेस. बट वो हमको कब मिलती है? आज इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ कुछ पाने के लिए, बट अगर मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो क्या मैं उसमें मुझे सक्सेस मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो डू हार्ड वर्क एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लास्ट थिंग, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. अपने आप को खुद से मोटिवेट करो. एक बार वर्ड नहीं रीड करना आता है, रीडिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, गो सेकेंड टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, अनटिल अनलेस जब तक आपको नहीं प्रॉपरली रीडिंग करना है. डोंट योर सेल्फ डाउन, डोंट कीप योर मोरल डाउन. अपना मोरल मत डाउन करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो. सो डोंट लेट दिस बी यू प्लान अहेड. अपने आप को कुछ इस तरीके का नहीं बनाना है. नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, रेस्ट करेंगे, बुक्स को लीव कर देंगे, कोई बात नहीं. मॉरल वैल्यूज़ को कौन पूछता है? अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है. प्लान समथिंग. स्टोरीज़ को खुद की लाइफ से को रिलेट करेंगे. सो वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 4, मैक्स गिफ्ट. सो on page number 26 that we have read earlier also, what was there in the chapter? There was a girl whose name was Mac, and she was blind, but she was having a wonderful smile, and she had one brother also, and the name of his brother was Sam. So Mac was not happy that day. So what was Sam doing? Sam was telling her, asking her to tell something good about her, so that Max would get happy. She will laugh. So Sam was planning something like that. So we'll do a quick reading of that page number 26. Mac was a lovely girl with the most wonderful smile, but she could not see. One day she was very unhappy. She had been quiet all day long. Her brother Sam wondered what was wrong. Mac, let's talk about something which make you happy and all the things you are good at, said Sam smilingly. I cannot think of anything, she told him. Well, think some more, said Sam, as he lovingly put an arm around her shoulders. Well, my ears are sharp. I can feel someone from 10 feet away, said Mac. Wow, Mac, you are the safest person around then, joked Sam. And I like to help people and make them laugh, she added. That's great. Think something more, he told her. Well, Mac thought hard. I can't listen to the birds singing from far, far, far away, and the rustle of the leaves. Mac smiled. So till here we have read in our previous class. Today we'll read page number 27 in your books from here. So open your eyes, open your ears and keep your eyes on the book. That's amazing, Max, said Sam happily. तो सैम ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अमेजिंग बात है. उसने खुशी से बोला. Mac grinned. But Mac, you forgot something, he said, holding her hands. She looked confused. Now Mac ने, but Mac, you forgot something. But Sam उसको बोलता है पर तुम Mac कुछ भूल गई हो. He said, holding her hands. उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है. She looked confused. Mac क्या हो रही थी? थोड़ी सी confused हो रही थी.
What did I forget? she asked. तो मैक उससे पूछती मैं क्या भूल रही हूँ सैम. Your gift is your beautiful heart. You cannot see, but you do have the loveliest heart. तो सैम उसको बोलता है तुम्हारा सबसे प्यारा गिफ्ट है तुम्हारा खूबसूरत दिल. तुम देख नहीं सकती पर यू हैव अ लवलीस्ट हार्ट. तुम्हारा जो दिल है वो बहुत खूबसूरत है. यू डू सो मैनी थिंग्स फॉर पीपल. तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करती हो. एंड वेन यू स्माइल, और जब तुम हंसती हो, इट्स लाइक योर आइज हैव देयर ओन स्पेशल आइज स्माइल. और ऐसा लगता है कि तुम्हारी आँखों में एक अलग ही खुशी है. खुशी यहाँ पे जो स्माइल है वो किसको बोला है? खुशी को बोला है. सो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स दैट यू हैव मैक. तो सैम उसको समझाता है कि जो भी तुम्हारे अंदर अच्छी चीज़ें हैं उसका थैंक करो. यू आर राइट सैम, आई नेवर थॉट अबाउट द गुड थिंग्स आई हैव, सेड मैक, हगिंग सैम हैप्पीली. तो वो सैम को हग करके बोलती है तुम मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हो सैम. ये तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे में जो चीज़ नहीं है मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ, बट मेरे में जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं मैंने उसके लिए कभी नहीं सोचा. तुमने मुझे ये बताया उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ. और उसको हग किया और वो बहुत खुश हो गई. सो स्किल्स फॉर लाइफ, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अ थैंकफुल हार्ट इज़ अ हैप्पी हार्ट. थैंकफुल हार्ट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास होता है हमें उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए. अगर हम उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो हमारा दिल अपने आप ही खुश रहेगा. सो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर यू विल सी सम वर्ड्स दैट इज़ शार्प. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शार्प? एक तो शार्प का, अब यहाँ पे क्या होता है? होमोफोन्स होते हैं. होमोफोन्स क्या होता है? वर्ड एक ही होता है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंस हो सकता है. जैसे शार्प का मीनिंग एक तो होता है तीखा. यहाँ पे जो शार्प का मीनिंग यूज़ हुआ है वो हुआ है क्विक टू हियर, जब हम जल्दी से सुन लेते हैं. नेक्स्ट इज़ लवलीएस्ट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लवली? का सुपरलेटिव डिग्री होती है लवलीएस्ट, दैट इज़ वेरी गुड. अनहैप्पी होता है सैड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रिंड? ग्रिंड का मीनिंग होता है टू स्माइल वाइडली, ज़ोर ज़ोर से हंसना. कन्फ्यूज्ड होता है जब हम किसी चीज़ को लेके क्लियर नहीं होते हैं. ओके, नाउ इन योर बुक, आपकी बुक्स में एक छोटी सी एक्टिविटी कुछ दे रखी. बी माइंडफुल लाइक कीपिंग द वाटर सेफ. फिल अ जग विद वाटर. स्टैंड विद योर फ्रेंड इन अ सर्कल. आपको एक पानी का जग भरना है और अपने फ्रेंड के साथ सर्कल में खड़े होना है. नाउ पास द जग ऑफ वाटर अराउंड. और अपने फ्रेंड को पास करना है उस भरे हुए जग को. ट्राई नॉट टू स्पिल इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वाइल द जग चेंजेस हैंड. जैसे जैसे आप जग को पास करोगे अपने दोस्तों को, उसमें से पानी का एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए. रिमेंबर, याद रखिए, टू मूव स्लोली एंड जेंटली, कि आप उसको धीरे धीरे मूव करें, आराम से. वंस द जग ऑफ वाटर हैज़ completed द सर्कल. जैसे ही जो जग है वो पूरा सर्कल आपने फ्रेंड्स में रोटेट कर लेते हो. pour a little water in glasses for each person who kept the water safe. फिर थोड़ा थोड़ा पानी ग्लासेस में फिल करना है और उनको देना है जिन्होंने वाटर को सेफ रखा है, गिराया नहीं है. ड्रिंक एंड से, पानी पी के क्या बोलना है? वी आर ट्रूथफुल फॉर दिस, थैंकफुल फॉर दिस वाटर. हम इस पानी के लिए बहुत शुक्रिया करते हैं. ठीक है. सो देयर इज़ नथिंग मच इन दिस. इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें यू कैन डू फिल इन द ब्लैंक्स नाउ. From now onwards you have to do a bit exercises like Mac was nice girl but she could not. Mac एक अच्छी बच्ची तो थी बट वो क्या नहीं कर सकती थी? देख नहीं सकती थी. So this exercise you will find on page number 28. So the answer is C. Sam said that Mac had the dash heart. Mac का हार्ट कैसा था? दिल कैसा था? Loveliest heart. Mac had sharp. Mac के जो कान थे वो कैसे थे? Sharp थे. Mac like to help people. उसको लोगों की मदद करना बहुत पसंद था. और इसमें आप कर सकते हैं unjumble the letters to find the words that mean the following on page number 21. What is the meaning of to smile? Then is we hear from these. जंबल करना, ये खुद से करेंगे, बहुत ईजी है. जैसे अब एक का आंसर है ईयर्स, एक का आंसर है आइज़. सो डू इट योरसेल्फ. स्माइल का यहाँ पे मीनिंग हो सकता है ग्रिन, GRIN, ग्रिन. सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. रीड द चैप्टर
Okay, then we'll do something here with a little help from my friends to draw something here. So we'll do it in next class, because in this chapter you are not having very like big chapters. So we'll again start the chapters from the beginning to develop, to enhance our reading skills. So the value from this chapter we get is, we should always thankful to the things which we are having in us, instead of what. हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें खुद को ये नहीं बोल के मोरल डाउन करना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है. एटलीस्ट जो हमारे पास है हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए. सो बी थैंकफुल. थैंक यू सो मच. टेक केयर. See the video properly, and I want more and more views. Thank you.